Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing lecture number 21, and in this lecture we will be studying about the education system only. In the 20th lecture, this is continuation of the lecture 20. Now in the earlier lecture we talked about the education development of education system in India, and then we talked about how English came into being as the primary mode of instruction in India of education. English कैसे मेन भाषा बनी एजुकेशन की, एंड देन फिर हमने उसके अंदर वुड्स डिस्पैच के बारे में बात की थी, जो कि मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है. This will be very fast lecture because this is a little longer lecture. Try to be with me and try to remember things as and when I speak. So the first thing that we do today is the Hunter education system. This is Hunter Education Commission, and this was in 1882, right? So basically this is the name of a person. His name is W.W. Hunter, on whose names we have the commission. He was the chairman of this, right? And he basically came to India to review. He came to review Wood's dispatch, the impact of Wood's dispatch. He came to this commission came into existence for that, right? Now and there was one more reason for this to come. This is one reason for coming of Hunter Commission. The second was that the प्रोपेगेंडा बाय द मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो उनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा था वो ये चल रहा था कि एजुकेशन ऑफ सिस्टम इन इंडिया वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ वुड्स डिस्पैच. तो सो वी कैन से दैट कंप्लेंट बाय क्रिश्चियन missionaries, right? So then we move ahead. So what did all recommend? We'll talk about it. So now before that I'll just quickly tell you that ये basically elementary education से deal कर रहा था, and प्लीज़ रिमेंबर दैट हंटर कमीशन बच्चों के लिए है, बच्चों को हंट कर रहे थे, ना कि इट वाज नॉट, ठीक है ना, दुखी कर रहे थे. बच्चों को दुखी करने के लिए आया था हंटर कमीशन. एक एक को ढूंढ के तब परेशान करेंगे पढ़ा के. तो दिस कमीशन जो था, इट वाज नॉट फॉर यूनिवर्सिटी education system. Please remember this. We will talk about university education system after the Hunter education commission, right? So what were its main recommendations? We'll talk about it. Now it said that number one, obviously it's about primary education, so special focus on primary education, special focus should be there on it. इसके बारे में बात हुई थी. Then it talked about that the primary education, it should be in vernacular, right, in those subjects जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें. So that means that in vernacular in such subjects as well best fit them for their position in life, right? फिर ये चीज़ होती है. तो जो लोकल बोर्ड्स थे इस टाइम पे, सो सेकेंड पॉइंट इज वर्नाकुलर, राइट, सो दैट दे आर बेटर फिट इन लाइफ, इसलिए आया था बेटर फिट. नंबर थ्री थिंग दैट वाज टॉकिंग अबाउट दैट लोकल बोर्ड्स ओवर हियर दे वर एम्पावर्ड. एंड व्हाट वर दे एम्पावर्ड फॉर टू लेवी सेस फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. ठीक है, लोकल बोर्ड थे वो सेस लगा सकते थे ताकि फिर एजुकेशन आ सके प्राइमरी लेवल पे. ठीक है जी, ये हुआ. देन इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, एज आई सेड नॉट हायर एजुकेशन बट प्राइमरी वॉज द मेन फोकस. इट ऑल्सो फोकस्ड बट ऑल्सो ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, राइट. एंड दे सेड इट वॉज टू बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो थी, फर्स्ट वॉज लिटरेरी एजुकेशन. नाउ दिस वॉज टू go up to the entrance examination of the university, right, and the other was the practical training जो होती थी for basically vocational training जिसे हम कह सकते हैं, या practical. One was literary and one was practical training. This was for up to university entrance exam and this was for vocation, काम करने के लिए ये एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही थी, राइट. फिर एक
ऑल आउट एफर्ट था यहाँ पर किया गया कि प्राइवेट के सेक्टर को सपोर्ट किया जाए कि वो एजुकेशन के अंदर काम आ गए, बट बिकॉज एजुकेशन से हो रहा है एक्सपेंस, एजुकेशन इन्वॉल्व एक्सपेंस एंड एक्सपेंस वाज नॉट द मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स, दे वांटेड मनी, सो दे आस्क्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट, राइट. Now it also focused on let me just write it here only, this is number 6 point over here, on women education, राइट. वुमेन एजुकेशन के ऊपर सभी ने फोकस किया. इससे पहले हमने वुड डिस्पैच पढ़ा था, उसने भी किया था. और फिर 20 ईयर्स तक बेसिकली जो ये हंटर कमीशन है, ठीक है, फॉर 20 ईयर्स हंटर कमीशन काफ़ी कामयाब होके चला आगे. हंटर कमीशन, दिस इज़ हंटर कमीशन, और इसकी बातों को माना गया आने वाले टाइम में. और देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हंटर कमीशन का. जो सेकेंडरी स्कूल थे उनका नंबर डबल हो गया. आई स्टिल रिमेंबर 4000 से 5K हो गया. 5K मतलब 1000, तो 4K से 5K हो गया. और जो आर्ट्स वगैरह के कॉलेज थे वो भी ट्रिपल हो गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है. तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया था 20 साल में ही. और बेसिकली लेकिन इसके अंदर ये एक्सपेंशन जो इतनी हो रही थी, ये कॉलेजेस की एक्सपेंशन, जो सेकेंडरी स्कूल की एक्सपेंशन हो रही है, नॉट द कॉलेज, वो उसके अंदर फिलेंट्रॉफिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है जी. इस टाइम पे कुछ और छोटी मोटी चीज़ें भी हुई थी जिनके बारे में आई जस्ट मेक अ क्विक रेफरेंस ओवर हेयर. नंबर 7, दैट इज़ PU, Punjab University was set up, and that was in 1882. That was for supreme teaching and all the supreme literacy, supreme examining body. That was Punjab University was set up. This was in 1882. Then Allahabad University was set up. That was in 1887. So this was how this is how it went, right now. But then after this we see this is like almost the end of the 19th century. Now 19th century अब ख़त्म होने वाली है हंटर कमीशन के साथ साथ ही. And see what happens that there is lot of unrest about what all have been achieved in the education. So after this happens, because there was lot of education but there was deterioration of the quality, right, and it wasn't on the right lines. So all those educational institutions, basically Britishers thought कि ये अब यूनिवर्सिटी ना रह, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितनी हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना रहकर दे हैव बिकम ऑफ द फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज को पैदा करने वाली वो फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, ठीक है जी. तो अब इसके बाद यहाँ पे जब हंटर कमीशन की रिपोर्ट आकर चली जाती है, यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन कम्स एंड हिज नेम इज़ कर्जन, लॉर्ड कर्जन, राइट. तो कर्जन काफ़ी कुछ करेगा, उसके बारे में देखेंगे, लेकिन कर्जन का क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा होता है. ही टॉक्स अबाउट दैट द क्वालिटी ऑफ टीचर्स इज पुअर एंड राइट, ही टॉक्स अबाउट पुअर क्वालिटी, राइट. दिस इज ऑल्सो द क्रिटिसिज्म ऑफ आउटपुट ऑफ हंटर कमीशन एंड द वुड्स डिस्पैच, द पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स. सो दैट्स लाइक क्रिटिसिज्म, कॉमन क्रिटिसिज्म है, सब जगह आप लिख सकते हैं, जैसे आप सब जगह लिख सकते हैं वुमेन एजुकेशन पर फोकस किया गया था. So one was this, and then it was that it was examination ridden system, that whole focus was on examination, then the learning, that was thing, right. And now basically Curzon what did, basic, if I have to sum up Curzon's effort, I can say that Curzon made all private education into governmental education, and that we will see how that is main criticism also, right. So we'll talk about it now. First I'll talk to you about Indian Universities Act of 1904, right. Now what is happening in this, basically in 1901 Curzon summons the educational officers and asks them that was in 1901. Curzon is playing important role, and he invites lot of representative, lot of officers at for a round table conference, right over here. It is not the round table conference that we normally refer to, those first RTC, second RTC, third RTC related to Gandhi. This is normal round table conference at Shimla, Curzon at Shimla. और इस राउंड टेबल का मकसद क्या होता है, एजुकेशन इज़ द इज़ इट्स मेन मोटिव, राइट, इस आरटीसी का यहाँ पे. और फिर जब वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास होता है जिससे कि सारे ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन पर असर होता है, ठीक है जी. फिर जो कर्जन होता है उस टाइम पे कमीशन एक अपॉइंट करते हैं कर्जन के टाइम पर ही 1902 में, जिसका नाम है रेलिक कमीशन. और दिस रेलिक कमीशन, राइट.
तो रैली कमीशन आ गया इन 1902 एंड दिस वाज टू चेक द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड टू रिकमेंड प्रपोजल। ठीक है, इसका इतना ही था यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। अब इस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर वी हैव इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। ठीक है जी, तो ये एक्ट जो है क्या बातें करता है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, हम इसके बारे में अब थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो जो पहली चीज़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के साथ आती है दैट इज़ द यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनको हमने एक वो प्रमोशन ऑफ स्टडी एंड रिसर्च करेंगी, राइट, प्रमोशन ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। ठीक है, ये यहाँ पर इनका इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट का फोकस हैज़ शिफ्टेड टू, राइट। and what else, see the universities they will appoint the professors, right, and lecturers, in सबको university ही appoint करेगी, they would appoint them। and then he also talked about setting up कि क्या सेटअप करेंगे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, या लेबॉरेटरी लैब सेट करेंगे या लाइब्रेरी बनाएंगे एंड ऑल सच थिंग्स बेसिकली, एंड स्टूडेंट्स हेल्प वाज टेकन इन ऑल दिस, राइट। नाउ आफ्टर दिस जो गवर्नर जनरल था, जो कंट्रोल था यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, वो और गवर्नमेंट के अंदर बढ़ गया। सो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज़ इट इंक्रीज्ड, राइट, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उनको भी प्रॉपर एफिशिएंसी रखने के लिए फोर्स किया गया, तो प्राइवेट कॉलेज को इम्प्रूव किया करने की कोशिश की गई इस एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू, राइट। सो ऐसी चीज़ हुई। एंड सो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होती थी बैठा हुआ, जो बेसिकली मेन आपका गवर्नर जनरल है बैठा, तो उसके बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या कर सकता था। देखिए गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या हो रहा था, ही वॉज एम्पावर्ड टू डिफाइन कि किसी की यूनिवर्सिटी व्हाट वुड बी इट्स टेरिटोरियल लिमिट्स, दैट फॉर एग्जांपल देयर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो व्हाट ऑल कॉलेजेस ऑफ द एरिया कम अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दे विल नॉट बी अंडर रोहतक यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी और हिमाचल यूनिवर्सिटी, ऑल दोज थिंग्स। सो दैट डिपेंड्स ऑन दिस पावर वॉज गिवन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, राइट। Now this was highly criticized, this Indian Universities Act, because it was if I say that in the words of Gokhale, it was a narrow system, right? It basically it promoted the rule of the जो these Britishers था इनको करता था, प्रमोट करता था। और फिर जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी ये सारी की सारी एक्चुअली में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी और प्राइवेट का रोल बहुत कम हो गया था। और जो इंडियन ओपिनियन थी उनको ये लगता था कि जो इंडियन ओपिनियन की कर्जन वो चाहता था रिड्यूस द यूनिवर्सिटी टू द पोजीशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, जो अब डिपार्टमेंट ही बना लिया था उसने गवर्नमेंट का अपने आप में। ठीक है, और ओवरऑल इसका कंक्लूजन यहाँ पर यही था। सो इट वाज बेसिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही थी। दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन ओवर हेयर, राइट। सो okay, departmentalization was happening and this is the criticism। and second thing is that basically nothing changed। so ये सब जब हो जाता है तो फिर अब सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 के बाद फिर वो नई चीज़ लेकर आते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, एंड दिस इज़ नोन एज द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। एक्चुअली में व्हाट इज़ हैपनिंग दैट फ्रॉम दिस व्हाट डू यू कॉल दिस द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 ऑनवर्ड्स ही जब ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, देयर इज़ अ डिमांड फ्रॉम 1906 फॉर टू मेक द एजुकेशन कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल, राइट, कि सबके लिए और कंपल्सरी एजुकेशन लाई जाए। सो इन 1906 earlier what had happened, that's state of Baroda had introduced free and compulsory education, right। Baroda free, हमने अब जाकर किया है इसको आर्टिकल 21A में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग। नाउ बिकॉज ऑफ दिस they accepted the policy of रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। इसके अंदर जो है ये रेजोल्यूशन इस टाइम आया था, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, कि जब लोगों की ऐसी डिमांड आई कि फ्री कंपल्सरी किया जाए, लेकिन दे रिफ्यूज टू से दैट वी विल इंट्रोड्यूस कंपल्सरी एजुकेशन, इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस। सो बेसिकली ओवरऑल द सीन इज़ वेरी ग्लूमी एंड वेरी सैड ऑफ ऑन द सीन ऑफ फॉर एजुकेशन, राइट। सो एवरीवन इज सैड, सो देयर बिकम्स सैडलर, and because he is so sad he makes this commission, the Sadler University Commission, looks into every aspect from primary to secondary to university, the highest level of education. So now we will be talking about the Sadler
Commission of Education, and this was from 1917 to 1919, right? This is how it goes. Now, the what happens that this person, he was the vice chancellor of Leeds University, Dr. Sadler, and the Sadler Commission also included two Indians. This is important over here, and who? What are their names? Their names are Ashutosh Mukherjee, and the second person is Ziauddin Ahmed. Ziauddin Ahmed, right? So now I'll tell you something that हंटर कमीशन जो इससे पहले आया था, जिसके बारे में वी टॉक्ड अबाउट है, बच्चों के लिए जो था प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, दैट फोकस ऑन हंटर ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन, राइट? यूनिवर्सिटी कमीशन फोकस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सैडलर कमीशन वाज एंटायर थिंग, राइट? अब बेसिकली जो सैडलर कमीशन था, इट वाज प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट ओनली ऑन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बट मोर और लेस वट एवर वॉज द recommendations of it for Calcutta University were applicable throughout India for every place, right? So that is how it was. So what are the recommendations of the Sadler Commission? I'll just quickly talk about that. Sadler Commission's recommendations. So what are they? Number one, that 12 ईयर स्कूलिंग होगी आपकी स्कूल के अंदर, जैसे अब होता है 1 to 12 वी हैव क्लास, सो देयर वुड बी 12 ईयर स्कूलिंग, एंड दिस इज व्हाट ही रिकमेंडेड, राइट? एंड आफ्टर दिस देयर देयर वुड बी असेसमेंट एट द इंटरमीडिएट लेवल रादर देन मेट्रिकुलेशन लेवल. 10वीं की बजाय 12वीं के अंदर आपका टेस्ट होगा, एंड तब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करेंगे, राइट? सो एट दिस टाइम 12 ईयर स्कूल प्लस इंटरमीडिएट कॉलेजेस, दिस वॉज द मेन फोकस, इंटरमीडिएट colleges. This is Sadler, right? We start from the very basic and then goes up to higher education, right? And इसके बाद जो होगा वो डिग्री जो होगी, ग्रेजुएशन डिग्री होगी, वो 3 years की होगी, एंड उसके भी दो किस्म की डिग्री होगी. फॉर एग्जांपल इट विल बी ऑनर्स डिग्री और इट विल बी नॉर्मल पास डिग्री, राइट? दिस इज पास, दिस इज ऑनर्स डिग्री. दीज टू काइंड ऑफ डिग्रीज वर सजेस्टेड बाय हिम. देन ही सेड दैट द यूनिवर्सिटीज़ का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर कुछ बदलाव इसने प्रपोज किए. जैसे फॉर ही सेड दैट देयर शुड बी सेंट्रलाइज्ड. पहले क्या होता था, एक यूनिवर्सिटी है, उसके बहुत सारे कोई टुकड़ा कहीं पर है, सम पार्ट ऑफ इट इज समवेयर एल्स. सो जस्ट टू ही सेड देयर वुड बी सेंट्रलाइज्ड, यूनिटरी, residential. See, these are the key words that I keep on writing over here. Residential teaching autonomous bodies. ये universities को इसने बनाने की यहाँ पर कोशिश की थी, right? Now it also stressed the need for extension of इट ऑल्सो स्ट्रेस द नीड फॉर एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर फीमेल एजुकेशन. देखिए, ठीक है, यहाँ तो फीमेल एजुकेशन की बात सभी ने की है अभी तक. हमने जितनों के बारे में भी हमने पढ़ा है, राइट? एंड स्पेशली इन द कैलकाटा यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ पर स्पेशल बोर्ड भी एक सेटअप करता है फॉर दिस पर्पज़ ओनली, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है? अब आफ्टर दिस आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो अब इसके बाद अगली चीज़ क्या आती है कि टीचर ट्रेनिंग इज फोकस्ड नाउ ऑन टीचर ट्रेनिंग. Teacher training becomes the next focus, which is again a focus these days also. You will find that in education, whatever was the condition in 1917 is same in 2017. I hope it changes anyway. So there could be courses in science and technology was there, right? Applied science was there. Such courses were there, right? And at this time only many new universities were set up. In fact, from 1916 to 1921, 7 universities were set up. You want to know the name of those universities? I'll quickly name them for you. There's no need to remember this, but just for sake of it, if you have studied from this university, you will remember that it came after Sadler Commission, right? So this was Mysore was there, Patna was there, and Benares was there, and Aligarh, Dhaka, Lucknow, Aligarh, right? Dhaka, Lucknow, and Osmania University was there. All these came into being, right? Now, during this while, 1917, after 1917, two things happened. And in fact, one of the many things that happened over here was the introduction of diarchy by the Britishers, and that was through the Montagu-Chelmsford report. Right. Now, what happened at central government, this is like we are studying about the education system. Education took a big blow because of introduction under
introduction of diarchy. So education under diarchy. Right now, this really impacted the education system of India, because central government was not to take any interest or responsibility in the educational central in educational इंटरेस्ट, राइट. तो इनके अंदर एजुकेशनल इंटरेस्ट के अंदर इनका कुछ भी नहीं बचा, तो इससे प्रॉब्लम हो गई, राइट. और फिर जो 1902 से ग्रांट्स का सिस्टम चल रहा था, इवन दैट वाज अबॉलिश्ड बाय आफ्टर द मॉन्टेगू-क्लेंसफोर्ड रिपोर्ट. सो अब हो क्या, इसके अंदर कुछ भी और ख़ास नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी आगे बढ़ता है. उसका रीज़न क्या होता है? फिलेंट्रॉफी, दान पुण्य के जो काम से आगे चीज़ें बढ़ रही होती हैं. सो दैट वाज अबाउट एजुकेशन अंडर डायरकी. एंड देन केम द हार्टॉग कमीशन, हार्टॉग, right, Hartog commission, and this was in 1929. And basically what was happening, that quantity of the universities went very up, number of universities, but quality of the universities became very low. And because of this imbalance, Hartog commission suggested few things, right. It suggested that we need to focus on primary education, right. So focus on primary. So this was what Hartog was saying, primary education. Then he also talked about that for secondary education, he said that it was dominated by matriculation system, ki 10th का पेपर दिया, नंबर आया, आगे बढ़ेंगे. तो he said there should be selective system and not what do you call this, matriculation system, right. And then he talked about the weaknesses of the university education and said that there has been very lowering of standards, and this needs to be tackled somehow, lowering of standard of education. This was one of the findings of the Hartog committee. So after, and meanwhile, अब यहाँ पर क्या होता है, this is 1929. So what happens that there comes something called Vardha scheme of basic education, scheme of basic education. Now what is the scheme? Basically what happened, that Government of India Act 19 came in 1935. We will talk about this in one of our lectures, the detail of this act. But it introduced provincial autonomy, right. This is important. The provinces were more autonomous now, provincial autonomy. And once the provincial autonomy was there, and so the Congress came into power after the 1937 election for 28 months. So the Congress party wanted to set something for the education system, right. So this is how it was. And then in 1937, what happens, that Gandhi, what he does, that he has got a newspaper, right. He writes, he has got his own newspaper, which is called the Harijan, right. And in this newspaper he proposes a system of education which he calls basic education system, right, basic education. And जो ये basic education होता है, इसका जो focus होता है, जो basic education का focus है is learning. लेकिन learning कैसी? Learning through activity. ये होता है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के अंदर. और इसका जो मेनली यही होता है, इसका फोकस कि एक्टिविटी कर करके ही हम इसे सीखेंगे, ठीक है. और ये कहते हैं कि 7 ईयर कोर्स होगा और मदर टंग के अंदर पढ़ाई की जाएगी, और ऐसी बातें इसके अंदर होती हैं, ठीक है. लेकिन फिर क्या होता है, 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ 1939 द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर व्हेन जर्मनी अटैक्स पोलैंड. नथिंग मच कुड हैपन. जो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन होती है, वट एवर कुड हैपन, इट कैन हैपन ओनली after India gets the independence. And meanwhile there is one very small thing in education sector that comes here, which is known as the Sargent plan. बहुत फालतू का है, unnecessary है ये, but still कहीं mention by chance आ जाए, so I just wanted to mention it. Now basically this what happens that in 1944 एक केब होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो एक नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन तैयार करते हैं जिसको सार्जेंट प्लान भी कहते हैं, ठीक है. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इट सेट्स अप समथिंग कॉल्ड द नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ पर अब ये सेटअप हो रहा होता है, ठीक है. और जो ये प्लान होता है, इट टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री, यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन,
और किन बच्चों के लिए? फॉर क्लासेस 6 to 11, राइट। और ये होता है इसके अंदर। और बस हाई स्कूल्स की थोड़ी सी बात होती है कि एक एकेडमिक होंगे, एक वोकेशनल होंगे, वो हमेशा की तरह सारे जैसे बात करते रहते हैं। क्विकली मूविंग अहेड, आफ्टर दिस कम्स द नाउ इंडिपेंडेंस के दौरान ही लगभग 1948 में एक्चुअली होता है कि राधा कृष्णन कमीशन आता है, एक राधा कृष्णन commission. This commission is very important because this has been in news recently in 2015. So this is very important for all the papers. 1944 से लेकर ये 49 तक ये होता है कमीशन। सो इसके अंदर क्या होता है, वो रिपोर्ट करते हैं ऑन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इनका भी फोकस क्या होता है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इसके अंदर वो कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। व्हाट आर दोज रिकमेंडेशन? आई विल जस्ट क्विकली talk to you about those recommendation. So the first recommendation that he gives is about the 12-year education system. That pre-university there will be 12-year course pre-university level पे, ठीक है। Number 2 he talks about is that एक साल में in 365 days of your education, at least 180 days should be there. It should be working days, and this is excluding the examination. पेपर वाले दिन को छोड़ के 180 दिन कॉलेज को काम करना चाहिए, ठीक है। और he also suggested 180 days of working, right? Now he also suggested focus on a few subjects like agriculture, law, right? And then he was talking about commerce. So such things he was talking about, which whatever was good for the development of individuals and the nation, जो भी सबके भले के लिए वहाँ पर हो सकता था उस टाइम पे। And university degree होती है, he said that it should not be considered essential for administrative services. For example, आपने अगर IAS या PCS का पेपर देना है किसी भी स्टेट का, उसके लिए ग्रेजुएशन होना should not be compulsory. This is what he suggested Radhakrishnan Commission, right? This is an important fact for you to know. ग्रेजुएशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है जी, इट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पर इसके अंदर ये बात आई। देन आफ्टर दैट ही टॉक्स अबाउट दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी ब्रॉट ऑन द कंकरेंट लिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर है, कंकरेंट लिस्ट में आनी चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन। देन ही सेड कि टीचर सैलरी शुड बी रेज्ड, टीचर salary. And finally, in number 7 is that he said that UGC shall be created, right? And because now we will talk about the UGC, this is also known as the University Grants Commission. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि राधाकृष्णन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया होता है। तो फाइनली 1953 में UGC is set up, and in 1956 through the UGC Act it becomes a statutory body and autonomous body. एंड जो जितने भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मुद्दे होते हैं फॉर सो इट्स अ स्टैच्यूट बन गया, स्टैच्यूटरी बॉडी बन गई, स्टैच्यूटरी बॉडी, राइट। एंड विद द एक्ट, विद ऑफ कोर्स विद एक्ट, राइट। तो यहाँ पर इस टाइम पे ये हो रहा था। तो वो जितने भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मैटर होते थे, जैसे कि व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, या फिर फैसिलिटीज़ फॉर रिसर्च, तो यूजीसी इसके बारे में भी जो बात हो रही थी, राइट, वो भी इन्होंने ध्यान किया। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी एनुअली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अब भी यही करती है, क्या करती है, यूजीसी को पैसे देती है और यूजीसी इनको यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स की शेप में आगे देता है, राइट। एंड इवन टू दिस डे ये आज भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है जी। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज़ कोठारी एजुकेशन। कोठारी एजुकेशन जो होता है बेसिकली एक डॉक्टर DS कोठारी इसके चेयरमैन होते हैं। ये 1964 में आई होती है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो इसका इतना ही काम होता है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि हमें एक नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर इनका फोकस होता है। एंड इसके अंदर प्रोफेसर्स आते हैं यूके से हमारी हेल्प करने, USSR से आते हैं, यूनाइटेड नेशन से, सारे लोग इसके अंदर आके हमारी हेल्प करते हैं कोठारी एजुकेशन सिस्टम की। इसके अंदर व्हाट ही टॉक्स अबाउट, द वन थिंग ही टॉक्स अबाउट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड सोशल सर्विस की एक जनरल एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए। सो वन इज़ द वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्स क्रिएट किया जाएगा। एंड दूसरी बात क्या है, एंड सोशल सर्विस, दोनों चीज़ों को एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस। नंबर 1, दिस इज 1। नंबर 2, मॉरल एजुकेशन सिस्टम पर फोकस होगा, मॉरल एजुकेशन। दिस इज कोठारी सिस्टम, कोठारी कमीशन saying that, right? This कोठारी एजुकेशन कमीशन
right, moral education would be the focus. Then he talks about the this vocationalization. this का आज भी हमारा फोकस हो रखा है इसके ऊपर कि वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, काम का जिससे नौकरी मिल सके, पैसे बन सकें. एंड देन ही टॉक्ड अबाउट दैट दो सेंटर्स ऑफ एडवांस स्टडीज दे शुड बी सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज दे शुड बी स्ट्रेंथन. चाहे इनको आप पैसे दो, चाहे कैसे भी करके इनको स्ट्रेंथन करो. एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड वो सारा कुछ, एंड एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इन सारी बातों पर भी इनका फोकस रहता है. कुछ नथिंग मच सिग्निफिकेंट ओवर हियर एज सच फॉर अ पर्पस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. एंड फाइनली आई विल टॉक अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, आफ्टर विच आई विल स्टॉप. नाउ दिस इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. अब इसके अंदर क्या हो रहा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंदर, दैट it was based, first of all it was based on recommendation of Kothari commission and this came in 1968. जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कवर करेंगे तो उसके अंदर भी हम इस बात को पढ़ेंगे. तो इसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं. बेसिक आई विल टॉक टू यू अबाउट 7 recommendations ऑफ हिम ऑफ दिस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. जो पहली की एजुकेशन क्या है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. सो फ्री एंड compulsory education, and this is up to 14 years. Number 2, 3 language formula. एक आपकी इंग्लिश, एक आपकी हिंदी और एक आपकी वर्नाकुलर. ठीक है जी. और सो दैट विल बी द फोकस. 3 लैंग्वेज फार्मूला फार्मूला एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. राइट, इसके अंदर यही हो रहा है. 3 लैंग्वेज फार्मूला की डिटेल के बारे में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के टाइम पर बात करेंगे. देन इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च. तो साइंस के ऊपर फोकस करेंगे एंड हम रिसर्च के ऊपर इसका फोकस करेंगे. और तो ये 3 इनकी हो चुकी हैं. राइट. सो नेक्स्ट इज देयर फोकस वाज ऑन टीचर्स के लिए. तो टीचर्स की सैलरी, दिस शैल बी इम्प्रूव्ड. राइट, एमोल्यूमेंट, सैलरीज, ये सब इनका बढ़ा दिया जाए. देन एजुकेशन हम बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए, ताकि ये दोनों ग्रो कर सकें ज़्यादा अच्छे से. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ, कीपिंग इन माइंड दीज वी शैल हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. एंड नंबर 6 दैट ही टॉक्स अबाउट इज द टेक्स्ट बुक्स. दैट टेक्स्ट बुक्स शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड शुड बी वेरी क्वालिटेटिव. एंड इमेजिन कीजिए NCERT ने क्या ही टेक्स्ट बुक्स बना रखी. इमेजिन व्हाट NCERT इज क्रिएटेड आफ्टर दिस पॉलिसी. राइट. एंड फाइनली number 7, which has not been implemented probably yet to this date, is that investment of 6% of national income in education. तो ये भी अभी तक implement नहीं हो पाया है. So this was the scene of education in India. If you have any doubts, आप नीचे comment section में डाल दीजिए. And I just have one request over here, a quick request. Please subscribe to our channel अगर आप और भी videos देखना चाहते हैं. We are already doing polity, history is running. We are doing current affairs, though we're doing that intermittently, right? And if you you can go to, and all our updates, whatever we do, that goes on our website www.fantasticfundas.com. I'm just writing an address here for you. And we also update on Facebook and Twitter. You can go there and follow the channel, right? So that is all, and thank you for watching.